So today's topic is the catalysis. Topic number 5.2. So in catalysis, first of all, what is meant by catalysis? So catalysis means any chemical reaction is occurred. Here you are given the reaction that 2KClO3. So KClO3 is decomposed to give the KCl and O2, right? So this chemical reaction is occurred in the temperature range of 653 to 873 Kelvin. Okay, and this reaction is occurred in a certain speed, certain rate. Now, if we use in this reaction, if we use manganese dioxide, that is MnO2, that is MnO2. So in this reaction, if we use MnO2, the decomposition takes place at a considerably low temperature range, that is only 473 to 633, and also at a much accelerated rate. So the added manganese dioxide remains unchanged with respect to its mass and the composition. Means the added amount of manganese dioxide is constant, it is not changed. Its mass is constant as well as its composition, means its physical state is also constant. But in presence of this compound, the decomposition of potassium chlorate becomes so much fast, and this reaction takes place at the lower temperature as the reaction was occurred in absence of catalyst. मीन्स यहाँ पे रेट भी इंक्रीज हुआ और लो टेम्परेचर पे रिएक्शन पॉसिबल हुई. सो इन अ सिमिलर मैनर द रेट्स ऑफ द नंबर ऑफ chemical reactions can be altered by the mere presence of the foreign substance. Foreign means this MnO2 is not used during the reaction. This compound is taking part in the reaction, but it is formed back after the completion of reaction. Thus this MnO2 is known as the catalyst, and here this phenomenon is known as catalysis. Okay, so the word catalysis means this reaction takes place here without catalyst. This reaction takes place at 653 to 873 Kelvin temperature. At this temperature reaction takes place, but in presence of catalyst this reaction is occurred at lower temperature and at the accelerated rate, means at the high speed. So this phenomenon is known as catalysis, the compound which is used as a catalyst. Okay, this is the main basic compound, and now this catalyst is a specific. Now what is the meaning of specific? Specific means in this reaction MnO2 acts as a catalyst, but in other reaction it may increase the speed or it may not. Means for every chemical reaction the catalyst is specific. So now the theory catalysis is continue. So systematic study of the effect of various foreign substances on the rates of the chemical reactions was first made by the Berzelius in 1835, and he suggested the term catalyst for the such substances. So substances which accelerate the rate of the chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction, and these are known as catalyst, and the phenomenon is known as catalysis. Okay, चलो 4.5 में वो ऑलरेडी आ गया है. नेक्स्ट, प्रोमोटर्स एंड द पॉइजन्स. नाउ चलो, प्रोमोटर्स का मतलब क्या है? प्रोमोटर्स आर द सब्सटेंस दैट एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. अब कैटलिस्ट को एक्टिव करने के लिए भी कुछ सब्सटेंसेस चाहिए. तो यहाँ पे Fe एंड MO रिएक्शन कौन सी है भाई, पता है किसी को? N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3. Which reaction is this? Haber's process. Very good.
ओके तो ये जो हैबर्स प्रोसेस है, ओके तो यहां पे Fe यूज होता है, पता है ना, एंड MO. Fe is used as a catalyst where MO is used. This MO is used as a promoter. प्रमोटर क्या करता है कि वो कैटलिस्ट को एक्टिव करता है, ओके जैसे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो दोनों Fe के सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे, तो MO क्या करेगा कि वो रिएक्शन फास्ट बनाएगा और Fe को एक्टिव बनाएगा, जिससे मोर Fe की सरफेस अवेलेबल होती है फॉर द एड्सॉर्प्शन. सेकेंड वर्ड इज द पॉइजन्स. तो पॉइजन का मतलब क्या है, इट डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. ओके चलो हैबर्स प्रोसेस में मॉलिब्डेनम एक्ट्स एज अ प्रमोटर एंड आयरन इज यूज एज अ कैटलिस्ट. अभी मैंने समझाया ना वही. चलो और एक चीज समझानी थी, ये पॉइजन कौन सी रिएक्शन में यूज होता था, किसी को याद? एनीवन? तो याद करो CH3CHO, क्या नाम है इसका? इथेनॉल. गुड. So ethanol is reacted with zinc and HCl. So when ethanol is mixed with Zn and HCl, so when zinc and HCl both are combined, at that time hydrogen gas is evolved, and here hydrogen gas is evolved so much fast. Okay, speed of reaction is so much fast. So at that time mercury is used. So mercury is used as a poison. तो उसका नाम है कैटालिटिक पॉइजन. कैटलिस्ट का काम क्या है? टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. कैटालिटिक पॉइजन का काम क्या है? टू डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो तब क्या होगा कि ये जिंक और HCl के दोनों के बीच में रिएक्शन तो होगी, हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होगा, बट स्लोली. सो दैट हाइड्रोजन कैन बी एडेड इन इथेनॉल इन अ manner that the more product is obtained. Okay, तो mercury decreases the speed of reaction and the product, याद है किसी को? Ethane. Very good. Ethane. And which reaction is this? Good. Clemmenson reaction, chapter 12. Okay, so this is known as catalytic poison. तो पॉइजन का मीनिंग समझ में आ गया होगा. किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट इज द होमोजेनियस कैटालिसिस. चलो, when the reactants, products and the catalyst are in the same phase means पता चला, same physical state. Catalyst and the reactants and products all are in same physical states, either solid or liquid or gas. So at that time the process is known as homogeneous catalysis. Is if different than heterogeneous catalysis. चलो एग्जाम्पल देख लो. अब देखो, सबको पता है जनरली कॉन्टैक्ट प्रोसेस. तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में रिएक्शन यही है, SO2 इज रिएक्टेड विथ O2 टू गिव SO3. तो उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता था? यस एनीवन? वेरी गुड. V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस. इट्स अ प्रोसेस टू फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4. तो उसमें V2O5 यूज होता था. अब देखो, SO2 is a gas, O2 is a gas, V2O5 is a solid. Physical states are different, then it is known as heterogeneous. But here lead chamber process, this process is known as lead chamber process, and here NO gas is used. Okay, so
SO2 is in gaseous state, O2 is in gaseous state, NO is also in gaseous state. Okay, so all are in a gaseous state, thus it is known as homogeneous catalysis. Second is methyl acetate is hydrolyzed in presence of HCl, so acetic acid and methanol is obtained. So here also all the components are in liquid phase, homogeneous catalysis. Third one is hydrolysis of sugar, it is known as inversion process. तो सुक्रोज में से आपको मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, प्रिपरेशन में आ चुका है चैप्टर 14 में ये. ओके, C12H22O11, it gives glucose and fructose, so all are in same physical state. Here H2SO4 is used. So these are the examples of homogeneous catalysis. Next is heterogeneous catalysis. See the example, SO2 is converted into SO3 in presence of platinum. So SO2 is in gaseous state, SO3 is gaseous state, but platinum is in solid state. So physical states are different, phase are different. So these are known as heterogeneous catalysis. Or next example, when nitrogen and hydrogen are combined to give ammonia, here Fe catalyst is used, heterogeneous. Nitrogen, hydrogen, ammonia all are in gaseous state, but Fe is in solid state. Next आपको पता है ओसवाल्ड प्रोसेस, तो उसके ये स्टेप है, चैप्टर 7 में आ चुका है ये. अमोनिया इज कंबाइंड विथ O2 टू गिव NO and 6H2O. So this reaction is of Oswald process, and here ammonia, O2, NO and H2O all are in gaseous state, but platinum, the substance which is used in solid state. So these are the examples of heterogeneous catalysis. Hydrogenation of the vegetable oil, तो आपको पता है वेजिटेबल ऑयल में से वेजिटेबल घी बनता है, तो उसमें निकल कैटलिस्ट यूज होता है. ओके, और समझ में आ चुका होगा. नेक्स्ट, एड्सॉर्प्शन थियोरी ऑफ द कैटलिसिस. अब देखो होमोजीनियस में क्या होगा, तो वो हम समझते हैं पहले. होमोजीनियस में फिजिकल स्टेट सेम थी, पता है ना. तो क्या होगा, ये जो कैटलिस्ट है ना, वो रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होगा और आपको इंटरमीडिएट स्टेट आपको बनाएगी. और इंटरमीडिएट स्टेट में से फिर क्या होगा पता है, उसका डीकंपोजिशन होगा, जिससे आपको प्रोडक्ट मिलेगी और कैटलिस्ट बैक मिलेगा इन द सेम फेज, और रिएक्टेंट में से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, बट रिएक्शन बिकम्स फास्टर अगेन. तो ये SO2, O2 और NO तीनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाएंगे. और फिर वो इंटरमीडिएट स्टेट मतलब जो मिडल स्टेट है वो डिकम्पोज होगा, जिसमें से कैटलिस्ट इन प्योर फॉर्म मिलेगा और प्रोडक्ट मिल जाएगी, दैट इज SO3. सेकेंड एग्जाम्पल भी हम समझ सकते हैं उसी हिसाब से, ये भी हम समझ सकते हैं, लेकिन लॉजिक समझ में आया होगा. तो यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल स्टेट सेम है, तो फिर रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर कंबाइंड टू गिव द इंटरमीडिएट स्टेट, and then it is decomposed to give the product and the catalyst in the same phase. लेकिन अब हेट्रोजीनियस में क्या होगा, तो हेट्रोजीनियस में ये प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम की सरफेस पे SO2 और O2, प्लैटिनम की सरफेस यहाँ पे SO2 और O2 के लिए मीटिंग पॉइंट है, और वो दोनों एड्सॉर्ब होंगे. एड्सॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोनों के बीच में रिएक्शन होगी जिससे SO3 मिलेगा और फिर SO3 रिमूव हो जाएगा, सो दैट प्लैटिनम सरफेस इज अवेलेबल फॉर अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 एंड O2. तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बताया मैंने, प्लैटिनम मतलब कैटलिस्ट की सरफेस पे रिएक्टेंट्स का क्या होगा, एडसॉर्प्शन. वर्ड याद रखना है आपको, तो देख लो यहाँ पे वर्ड. चलो उसके भी यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं. पहले क्या लिखा है, डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. क्यों यहाँ पे सरफेस बोला गया, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स डिफरेंट है, मतलब वी आर स्टडिंग अबाउट द हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, सिंपल.
Okay, so this one is the diffusion of reactants to the surface of catalyst. Chalo, second, adsorption of reactant molecules on the surface of catalyst. Next, occurrence of the chemical reaction on the catalyst surface through the formation of intermediate. Then डिजॉर्प्शन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट मिलेगी उसका डिजॉर्प्शन होगा फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड thereby making of the surface available again for the more reaction to occur. मतलब दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए वो सरफेस फिर अवेलेबल होगी अगेन. तो इसको स्टेप्स, जनरली ये स्टेप्स आपको पूछेंगे एमसीक्यू में. अभी तो बात हो रही है सिर्फ अपने जी नीट के लिए. ओके तो उसमें जनरली स्टेप्स पूछेंगे कि भी कौन सा होगा या कौन सा स्टेप एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट का नहीं होगा. तो फिर स्टेप में और कुछ लिख देंगे उसमें इसके रिलेटेड ही. तो आपको स्टेप्स में क्या हो रहा है वो याद रखना है. चलो पहले क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होंगे, देन एडजॉर्ब होंगे, फिर रिएक्शन होगी, फिर उसमें से जो प्रोडक्ट मिलेगी तो प्रोडक्ट डिसॉर्प्शन होगा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का, जिससे जो सरफेस होगी वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल होगी रिएक्शन होने के लिए. ओके, लास्ट स्टेप, तो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस. ओके चलो फिर यहां पे कुछ लिखा है दैट द सरफेस, चलो ध्यान से देखना. The surface of the catalyst, unlike the inner part of the bulk, has the free valencies which provide the seat of the chemical forces. अब जनरली कैटलिस्ट में कौन कौन से, अभी आपने देखे कौन कौन से कैटलिस्ट देखे, चलो बोलो तो सही. अभी हमने जो भी एग्जांपल्स पढ़े ना उसमें कौन कौन से कैटलिस्ट थे. यस, NO. चलो हेट्रोजीनियस की बात हो रही है. V2O5, प्लैटिनम, निकल, Fe. तो ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, पता है ना. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है कि सरफेस पे जो एटम्स होता है ना वो पैरामैग्नेटिक साइट होती है उनके सरफेस पे. कौन सी साइट, पैरामैग्नेटिक साइट्स होती है. ओके सो व्हेन द गैस कम्स इन कांटेक्ट विद द सच सरफेस व्हिच कंटेन्स द, लिखा है ना यहाँ पे देख लो, द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट अनलाइक द इनर पार्ट ऑफ द बल्क हैज द फ्री वैलेंसी. तो सरफेस पर फ्री वैलेंसी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं which provide the seat of chemical forces of attraction, and when a gas comes in contact with such surface its molecules are held up there due to the loose chemical combination, and if the different molecules are adsorbed side by side then they may react with each other resulting in the formation of the new molecules. मतलब Fe की सरफेस पे Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 4s2 3d6. तो देखो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है ना इसमें, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं. कौन, Fe की जो सरफेस पे जो एटम होता है ना उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना इससे, और दोनों साइड बाय साइड, अगर दो मॉलिक्यूल्स है तो साइड बाय साइड एडसॉर्ब होंगे, जिससे क्या होगा इन दोनों के बीच में रिएक्शन इजीली पॉसिबल है. मतलब यहाँ पे इंटरनल क्या हो रहा है वो एक्सप्लेन किया है. Okay, so they may react with each other resulting in the formation of new molecules, and thus the formed molecules may evaporate leaving the surface for the fresh reactant molecules. मतलब दूसरे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन होगी जब वो नए तरीके से एब्जॉर्ब होंगे. मतलब सरफेस पे क्या होगा, तो देखो ये जो बीच में जगह है ना वहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इजीली अट्रैक्ट हो पाते हैं. दिख रही ना जगह, जिसमें क्या होगा, सपोज ये नाइट्रोजन है और सपोज ये अपना हाइड्रोजन है, तो जिससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन इजीली पॉसिबल है.
ओके, दैट दे वांट टू टेल अस। चलो अब यहां पे देखो एक्सप्लेन किया है, ये सब एटम्स हैं, देख लो ये। तो क्या होगा, तो ये सब ए और बी दो मॉलिक्यूल्स के रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ओके, फिर क्या होगा कि ये दोनों देख लो यहाँ पे दोनों ए और बी दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगा, और फिर दोनों ए बी, तो ए और बी दोनों अलग थे, तो यहाँ पे ए और बी अलग अलग जगह पे एड्सॉर्ब होंगे। अब साइड बाय साइड होंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में इंटरमीडिएट स्टेट मिलेगी, और फाइनली कैटलिस्ट, तो ये फिर एज इट इज़ यही फॉर्म में। एंड दैट नाउ these points are available for the another at molecules of A and B, and reaction proceeds. So this theory explains why the catalyst remains unchanged in mass and the chemical composition. उसका chemical composition तो वैसे का वैसा ही है, देख लो, ओके, बट उनके सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मेन ये है, ओके। It however doesn't explain the action of catalytic promoters and the catalytic positions. ये यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते हैं वो, ओके। तो चलो ये हुआ फंडामेंटल। ओके, तो चलो फिर आज की जो थियोरीज लेनी थी वो थियोरी कंप्लीट हुई।